Good afternoon, students. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So we will continue our next topic. Previous chapter we completed genetic terminology. So all genetic terminology are completed by us. So if you have read the textbook, you have seen the activity which is given to us. See, just for a trial in the vacation period, what you all of you have done, we will check here. We will try to complete this activity. Okay, so now here complete the following chart. This phenotype is represented by tall. Phenotype is represented by dwarf. They have the genotype that is called as a genetic constitution. That is capital T, capital T. What will be the here for dwarf? For dwarf, what is the genotype? Give your answer by chat. Yes, small t, small t. Very nice, Tom Diksha. Now they produces the gametes. Safa good. They produces the gametes capital T and small t. The first filial, that first filial have capital T and small t. First generation show this tall. This tall is called as a phenotype. What it is called as a phenotype. What this may be? What I can say to this? हम इसे क्या बोलेंगे? Either it is phenotype or genotype, or this is tall, that is, this is known as a phenotype. See, tall have given the phenotype. So like that, for capital T and small t, what I have to say? Shambhavi, for capital T and small t, I told. Hybrid tall, it's okay, but accurate answer. Hybrid tall is also one type of phenotype. This capital T and small t is called as a Tanishq, very nice. From Anas, very nice. It is called as a genotype. See, capital T and small t are represented together, na? So, very good. Diksha, Safa, all of you have given right answer. This is called as a genotype. So now selfing of whom is takes place? Selfing of F1 generation. So F1 generation self with what? Tall species cross with tall. So this tall is again called as a phenotype. And this capital T and small t, this is called as a genotype. So selfing of genotype produces the gametes. What are the gametes? Just give me the answer here. Indicate what gamete I have to write. Please, by chat. What answer should be here for gamete? This tall variety produces what type of gametes? Yes. If wrong, don't worry. But all of you have to give the answer. Try to give the answer. So your intelligence automatically works. अगर आप आंसर करने की कोशिश करेंगे तो ही हाँ यस नाइस हाँ ये थोड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी जिसने दिया वो गलत आया और अनस आपने ओनली स्मॉल टी लिखा है ना लेकिन सी हियर इन द टू capital T and small t. That two genes are used here. So gamete should be also of two types. One is capital T, another one is the small t. So what is the gamete for this plant? For gamete for this plant is also capital T and the small t. So they are represented. हाँ capital T comma small t लिखो नहीं तो वो क्या लगेगा that या and लिखो नहीं तो वो कि सेम है दैट इज जीनोटाइप रिप्रेजेंट होगा सो नाउ इफ द मेल पेरेंट प्लांट है तो मेल गैमेट्स का मेल प्लांट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पे भी गैमेट्स क्या है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी नाउ व्हाट इज द जीनोटाइप हियर व्हाट शुड बी द जीनोटाइप yes all of you give me the answer yes very good safa anas shabash और रिद्धि ओके शांभवी ओके हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी गुड व्हाट इज द जीनोटाइप फॉर दिस नाउ कैपिटल हाँ वेरी नाइस अनस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फ्रॉम अभिनव गुड फ्रॉम शांभवी also nice huh so all of you giving accurate answer now what is the genotype here
Here is also capital T and small t. यहाँ पे क्या आएगा? Last one. Yes. Small t. Very good. So this all are called as a genotype. यहाँ पे हमने क्या represent किए हैं? हाँ, Dhanashri, good, shabash. These are called as a genotypes. So now, what is the phenotype for this? For this phenotype is tall. For this also phenotype is tall. For this also phenotype is tall. But for this, the phenotype is, what is the phenotype for this small t? Yes, by chat only. Yes, what is the phenotype for small t? What is the external appearance of this? This external appearance is shabash. This external appearance is called as a dwarf. Very good to all of you. So आपको ये शर्ट समझ में आया, मतलब आपको ये क्रॉस समझ में आया. This cross is called as a monohybrid cross. तो बोर्ड में आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग. Anyone complete the following chart, या तो कुछ और क्वेश्चन देंगे. So this is one activity based question. So now another cross chart activity is given to all of you. Here not at all any answer is expected, but see, round yellow is what that is called as a phenotype, and wrinkle green is also called as a phenotype. Either one plant is called as a male plant, other plant is called as a female plant. That is parental generation. What is the genotype for R? Round, that is RR. Genotype for yellow, that is capital Y, capital Y. Why here capital Y is written? Because dominant characters are considered. And here in wrinkle green seeds, the recessive characters are considered. That is contrasting character. Round is contrasted with wrinkle and yellow is contrasted with green. So contrasting character small r, small y, small y. So this is called as a genotype because it is represented by letter. We can't see internally, internal constitution. So it is written by the letter only. And now they produces gametes of each other. So round produces the gamete, that is capital R, and yellow produces the gamete, that is small y. So gametes of this round yellow seed is not single. आपके माइंड में ना कभी कभी क्या होता है, हाँ मैडम यहाँ पे R and Y लिखा है तो एक ही गैमेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर वो एंथर में 100 पोलन ग्रेन है तो 100 के 100 या तो 1000 पोलन ग्रेन है तो ऑल 1000 पोलन ग्रेन शो दिस गैमेट ओनली, यही गैमेट दिखाएंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे अगर व्रिंकल सीड है, दैट इज हमने यहाँ पे कौन सी कैरेक्टर लिया है, होमोजाइगस कैरेक्टर वी हैव सिलेक्टेड. तो गैमेट्स भी कैसे रहेंगे, होमोजाइगस. तो यहाँ पे भी अगर ओव्यूल है तो उस झाड़ को जितने भी फ्लावर आएंगे, all that flower produces the egg, that gamete are always small r and small y. So when fusion of, मतलब स्टिग्मा अगर यहाँ का है, स्टिग्मा यहाँ है और पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है इसके ऊपर, तो इससे जो सीड बनेगा, दैट सीड हैव दिस जीनोटाइप. तो जीनोटाइप, हमें जीनोटाइप देख के हमें फिनोटाइप बोलने आना चाहिए. सपोज हमने ऐसे रखा तो हमें इसका फिनोटाइप ऑटोमेटिकली आना चाहिए. क्या आएगा इसका फिनोटाइप, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिनोटाइप इज राउंड, and capital Y small y, the phenotype is yellow. So we should know by using the terminology also, genetic terminology also. तो इसका phenotype क्या हुआ, round and yellow. Now when this round and yellow intercross with each other, जब ये intercross हो जाएंगे, इनका जब सेल्फिंग होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फिंग मतलब क्रॉसिंग बिटवीन द सेम इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज, दैट इज वी कैन से इंट्रा स्पेसिफिक. अगर एक ही स्पीसीज में बार बार क्रॉसिंग हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेल्फिंग. सेल्फिंग ऑफ व्हाट, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. तो यहाँ पे सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन क्यों किया, क्योंकि ये F1 जनरेशन है. क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ पे जो राउंड येलो सीड आई है तो ये व्रिंकल और ग्रीन कैरेक्टर कहाँ गया है, वी हैव टू चेक दैट कैरेक्टर. तो इसलिए हम सेल्फिंग कर रहे हैं, राउंड और येलो सीड क्रॉस विथ किसके साथ किया, राउंड एंड येलो सीड. सो राउंड एंड येलो इज कॉल्ड एज ए फिनोटाइप. उसे क्या नाम देंगे, फिनोटाइप. तो जीनोटाइप ऑफ दैट राउंड एंड येलो. तो यहाँ पे राउंड एंड येलो का जीनोटाइप क्या हो सकता है, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. लेकिन हमने क्या बोला है, सेल्फिंग ऑफ F1. तो F1 का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इसलिए यहाँ पे क्या लिया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सो नाउ दैट सेम स्पीसीज आर सेल्फ्ड विथ ईच अदर. एक ही है प्लांट स्पीसीज
एक को मेल कंसिडर किया एंड अदर वन इज कंसिडर एज ए फीमेल, दूसरे को कौन सा कंसिडर किया, देखो फीमेल प्लांट कंसिडर किया। सो नाउ मेल एंड फीमेल सेल्फ, बट यहाँ पे हेट्रोजाइगस होगा। क्यों यहाँ पे हेट्रोजाइगस होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। तो इसके गैमेट्स प्रोड्यूस करते टाइम थोड़ा मैथमेटिकल या तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। मैं पहले आपको बोल के देती हूँ कैसे यूज करने का। कैपिटल आर अगर हमने यूज किया तो राउंड सीड कैरेक्टर यूज किया है, तो राउंड सीड कैरेक्टर कैन बी पेयर विथ किसके साथ होगा, सीड के कैरेक्टर से ना। तो सीड के कैरेक्टर अपने पास दो है, वन इज कैपिटल वाई, अदर वन इज स्मॉल वाई। तो एक बार क्या लेंगे, कैपिटल वाई, फिर सेकेंड बार कैपिटल आर लिया ही है, तो क्या रिमेनिंग रह गया, स्मॉल वाई। तो 2 RR ओवर, अब आर का पेयरिंग किसी वाई से हो सकता है क्या, नहीं होगा। अब क्या बचा है, देखो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कैन बी पेयर विथ किसके साथ होगा, फिर से कैपिटल वाई, एंड फिर से अगेन स्मॉल आर पेयर विथ किसके आया, स्मॉल वाई। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक ही तरह के गैमेट्स हुए क्योंकि स्पीसीज कैसी थी, होमोजेनिक। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीसीज हो गई हेट्रोजाइगस, क्योंकि उसके पास देखो 4 डिफरेंट लेटर है। तो 4 डिफरेंट लेटर है तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बन गए। वन इज कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इसी का सेल्फिंग करेंगे। तो सपोज हम लोग यहाँ पे चार्ट पे लेते हैं कि एक स्पीसीज को क्या लिया है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ओके, क्रॉस विथ किसके साथ किया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नाउ ये गैमेट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैंने कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे किया, सबसे पहले आर पे। तो आर किसके साथ पेयर किया, कैपिटल वाई, फिर आर किसके साथ पेयर किया, स्मॉल वाई, कैपिटल आर इज ओवर। अब क्या आएगा, स्मॉल आर पेयर विथ कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर पेयर विथ किसके साथ होगा, स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमेट्स बन गए किसके, F1 जनरेशन के। अब सेल्फिंग किया है तो इसके भी वही 4 गैमेट्स बनेंगे। कोशिश करो मुझे फिर से बोलने की, इसके गैमेट्स क्या आएंगे, वन इज कैपिटल आर, अदर वन इज कैपिटल वाई, सेकेंड क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, थर्ड वन कैरेक्टर क्या आएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर। अब ये 4 और 4 कितने गैमेट्स हो गए, 8, टोटल 8। तो 8 को रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर बोर्ड पे और उसे एक नाम दिया पुनेट स्क्वायर बोर्ड। तो पुनेट स्क्वायर बोर्ड में जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिखा था वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में वन इज कॉल्ड एज अ फीमेल, अदर वन इज द मेल। उसके गैमेट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देखो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ऑल ऑफ यू गेटिंग, प्लीज रिप्लाई मी यस और नो। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्लियर हो रहा है, ये मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ओके, थैंक यू। तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, नेक्स्ट क्या आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गायत्री। ओके, तो हम अभी यहाँ के लेंगे उसी के जैसा सेम, नेक्स्ट वन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई, नेक्स्ट क्या आएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सॉरी हाँ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और फिर क्या आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। हो गए। तो मैंने 4 को रिप्रेजेंट किया अप साइड और 4 को रिप्रेजेंट किया डाउन साइड एज इट इज। फिर कैपिटल आर, आप मुझे बताओ जरा इसका क्या आएगा जीनोटाइप, ये इसके साथ क्रॉस करके। आर इंटू आर कभी नहीं करना, आर स्क्वायर मत लिखना, आर आर रिप्रेजेंट होगा। यस, वेरी गुड अनस, आर आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। What will be the phenotype for this? Yes, Dhanashri, good. What is the phenotype for this? phenotype वो थोड़ा गलत हो गया, स्मॉल वाई सफा ने लिखा है वो। हाँ, phenotype for तनिष्क, वेरी गुड। इसका क्या आएगा, राउंड एंड येलो, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, हाँ गुड, अब मुझे बताओ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट का क्या आएगा, कैपिटल आर, हाँ नेक्स्ट वन जीनोटाइप, हाँ धनश्री गुड, हाँ next genotype Anas, right, capital R, then capital Y and small y, very good. What will be the phenotype for this?
इसका फिनोटाइप क्या रहेगा? व्हाट विल द फिनोटाइप? इसका एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या दिखेगा? हाँ, यस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर. Genotype by all of you are accurate. Shabash Dhanashri. Now I want phenotype for that. What will the phenotype for this? Yes, round yellow. Very good. शाबाश. अब मैं ऐसे ही बीच में लास्ट वाला लेती हूँ, देखते हैं किसको आता है. अब लास्ट वन स्मॉल r स्मॉल y, और यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल r स्मॉल y. What will be the genotype here for last one? यहाँ पे क्या आएगा for last species? दिख नहीं रहा है ना कैमरा में आपको? थोड़ा नीचे करो तो दिखेगा. देखो अभी दिख रहा है क्या? स्मॉल r स्मॉल y, और यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y. यस, वेरी नाइस धनश्री, शांभवी, गुड. स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y. शाबाश गायत्री. इसका फिनोटाइप क्या आएगा? व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस? वेरी गुड दीक्षा. व्रिंकल एंड ग्रीन. तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब व्रिंकल एंड ग्रीन ये हुआ. अब मुझे यहाँ पे क्रॉस करके बताओ. स्मॉल r स्मॉल y, हाँ, क्रॉस विथ स्मॉल r कैपिटल Y. yes, what is the phenotype here? Small r phenotype, wrinkle yellow. Let me see. Right, wrinkle yellow is right. I want genotype. First I have to write genotype. Shambhavi, small r small y. Just concentrate here. Small r small y, small r capital Y. Yes, good. तो क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. What will be the species? आपने क्या लिखा था? सॉरी सॉरी सॉरी. स्मॉल r capital Y small y. One girl who have given me the answer. That girl have given, I don't know the name. Wrinkle. She have given the specific phenotypic. That is wrinkle and what character? Yes, what is the phenotype? Wrinkle and what will the phenotype now? Wrinkled and wrinkle and yellow. शाबाश तनिष. तो दिख रहा है यहाँ पे wrinkle yellow है. अब यहाँ क्या आया? wrinkle yellow. अब यहाँ कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है. हाँ, नाउ सी यहाँ पे ये क्या है? स्मॉल r स्मॉल y क्रॉस विथ यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y. I want genotype. Genotype for this. Small r, capital Y, capital Y. What is the phenotype? What is the external character now? It is not visible to all of you now. What is the phenotypic character? इसका phenotypic क्या आएगा? small r है, मतलब क्या आएगा? हाँ, one that is called as a wrinkle. Very good. And capital Y है means यहाँ पे क्या आएगा? Yellow. शाबाश, wrinkle and yellow दीक्षा. तो यहाँ पे अब ये लास्ट में शांभवी, गुड गुड, शाबाश टू ऑल ऑफ यू. ये अब लास्ट वाला मुझे बताओ क्या आएगा? लास्ट जीनोटाइप दिख रहा है आपको? स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y क्रॉस विथ ईच अदर. यहाँ पे लास्ट वन स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y आना चाहिए. रिद्धि क्या आएगा? हाँ, यस, वेरी गुड दीक्षा, शाबाश शांभवी. यस सफा, धनश्री. यस. नाउ व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस? व्हाट इज द फिनोटाइप? शाबाश अनस. फिनोटाइप क्या है? यस, वेरी गुड दीक्षा. स्पीसीज क्या आएगा? व्रिंकल एंड येलो. तो आप अभी मैं पूरा चार्ट लूंगी तो मेरा पूरा लेक्चर उसी में जाएगा. समझ में आया? तो अगर आप क्रॉस करेंगे ना तो इसमें से आपको क्या होगा? राउंड एंड येलो के स्पीसीज कितने मिलेंगे? 9. ओके. एंड व्रिंकल एंड येलो के आपको कितने मिले हैं? 3. एंड व्रिंकल एंड ग्रीन के कितने मिले हैं? 3. इसी लाइन में आपको, इसी लाइन में इस तरह से क्या मिलेगा स्पीसीज? बताओ मुझे. राउंड एंड, कौन सा स्पीसीज मिलेगा आपको यहाँ पे? राउंड एंड ग्रीन. देखो पहले 9 स्पीसीज क्या मिले आपको?
राउंड एंड येलो। कितने स्पीसीज आएंगे? 9। देन नेक्स्ट 3 स्पीसीज कौन से आएंगे? राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट 3 स्पीसीज आपको कौन से आए? येलो एंड व्रिंकल। एंड लास्ट 1 स्पीसीज क्या आया? दैट इज व्रिंकल एंड ग्रीन। So this ratio, that is 9:3:3:1, that ratio is called as a dihybrid ratio. इस रेशियो को नाम क्या दिया है? डायहाइब्रिड रेशियो। तो 9:3:3:1 रेशियो इज कॉल्ड एज ए डायहाइब्रिड रेशियो। तो देखो अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिविटी दिया है, छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा तो आपको यहाँ मिला। ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्रॉस किए और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 4 into 4 is equal to कितने आएंगे? 9 क्या आएंगे? राउंड येलो। 3 स्पीसीज क्या आएंगे? राउंड एंड ग्रीन। 3 स्पीसीज क्या आएंगे? व्रिंकल एंड येलो। एंड लास्ट वन स्पीसीज क्या आएगी? व्रिंकल एंड ग्रीन। सो दैट रेशियो इज कितना आएगा टोटल? 9:3:3:1। क्लियर हुआ? और आपको घर पे एक्टिविटी के लिए आप मुझे जीनोटाइपिक रेशियो ढूंढ के निकालो। जैसे आपने मुझे जीनोटाइपिक रेशियो बोला था, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? दैट जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया यहाँ पे? 1:2:2:1। तो 1 क्या हुआ? कैपिटल टी कैपिटल टी। हाँ शाबाश, गुड गुड। 1:2 नहीं, 1:2:1। कैसे आया? देखो यहाँ पे ये क्या है? टॉल। ये स्पीसीज कैसे आया? टॉल। और ये 2 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके लिए हमने क्या लिया है? 2। ये दैट इज ऑल्सो टॉल, लेकिन जेनोटिकली क्या है वो? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इज टू किसके साथ? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो रेशियो क्या हुआ? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी। यस, नॉट विजिबल। ओके ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। See here, you cross with whom? Capital T small t। क्रॉस विथ किसके साथ किया? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैरेक्टर टी का ही लिया है ना, तो यहाँ पे क्या आया? कैपिटल टी क्रॉस विथ ईच अदर हुआ ना। फिर उसके बाद क्या आया? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और यहाँ पे क्या आया आपका? जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे जीनोटाइप क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज गिव मी द रिप्लाई। Is it clear now? Is it visible? Okay, thank you. I will restart again, okay? हॅलो, काय झालेलं? हॅलो, अरे मॅडमचा आवाज येतोय पण स्क्रीनवर पॉज्ड होती स्क्रीन। आता मॅमकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे म्हणून झालं. हा तर तेच तर आम्ही बोललो। Okay. यस मैम। ओके तो सी आपको डाउट है ना वहां पे 1:2:1 कैसे आया? हाउ इट इज 1:2:1। so यहाँ पे हमने क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैमेट्स लिए। अनस यू हैव गिवन द दैट इज नॉट विजिबल ना, so is it visible to you? कैपिटल टी स्मॉल टी। so how genotypic ratio is 1:2:1? 1:2:1, that is capital T that is 1. Okay, then capital T small t
that are how many species? 2 species. And small t, how many species? 1 species. So now what is the genotypic ratio? हमने जो लेटर यूज किए उससे उसका रेशियो क्या आया? Now give me the answer. What is the genotypic ratio? Yes, very good Safa. तो क्या आंसर आया इसका? Yes, all of you give me the answer. Is it right? Everybody get this point? What is the genotypic ratio? हाँ, yes, Riddhi, good. Diksha, right? 1:2, 2:1. शाबाश. तो ये रेशियो है मोनोहाइब्रिड का. सो आप लोग मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे कोई एक, अभी मैं एक ही को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ. ये कौन है? दक्षता ना, क्या नाम है उसका? जस्ट गिव मी द, अभी जस्ट जिसने चैट किया था, अगेन चैट में यस और नो. यस, who have given me the chat? दक्षता. तो दक्षता आपको क्या करना है, डायहाइब्रिड क्रॉस का आपको व्हाट्सएप पे क्रॉस करके डालना है आंसर. ओके, कोशिश करो, नहीं आया तो आप मुझे फोन करके पूछ लेना, कुछ डाउट होगा तो. तो आपको एक एक्टिविटी मिला. कौन सा एक्टिविटी मिला? दैट इज ऑल ऑफ यू हैव टू डू द डायहाइब्रिड क्रॉस. कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस एंड फाउंड आउट व्हाट? फाइंड द जीनोटाइपिक रेशियो. कौन सा रेशियो आप ढूंढ के निकालेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो. जैसे ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 9:3:3:1. सो लाइक दैट, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड. तो मैं 2 जन को काम देती हूँ, एक दक्षता को भी देती हूँ और एक अनस को भी देती हूँ. आप दोनों को भी वो क्रॉस करके डालना है. अब क्या करेंगे? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? टर्मिनोलॉजी, जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस. तो ये क्रॉस से ना मेंडल प्रपोज द लॉ. लॉ मीन्स यूनिवर्सल लॉ. जैसे देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग हमको क्या करना चाहिए? वोकअप करना चाहिए और फिर बाद में अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो भी है, एक लॉ हो गया, यूनिवर्सल लॉ हो गया. सनराइज इन ईस्ट होता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ हो गया. सनराइज इन सनसेट इन वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल लॉ हो गया. वैसे ही मेंडल ने टी प्लांट को स्टडी करके कुछ इनहेरिटेंस के लॉज बनाए और ये आपको बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे. व्हाट आर द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? बाय स्टडिंग विच क्रॉस? कल टर्मिनोलॉजी किसी ने मुझे बोला था 22, मैंने भी काउंट नहीं किया था. तो टोटल 22 टर्मिनोलॉजी हमारी हो गई है, उसको आपको लर्न करना है. सो बाय यूजिंग ओनली 1-2 क्रॉस, one is monohybrid cross and another one is called as a dihybrid cross. By that 2 crosses, he proposed the 3 laws. What are that 3 laws? All of you have to understand that laws also. Now, the law of dominance. First law उसने क्या propose किया? Law of dominance. When a cross between, तो मैं law को आपको explain भी करती हूँ. When a cross between whom takes place? Between 2 pure parents. By considering what? 1 or more pair of contrasting character. That the character that appear in F1 generation is called as a dominant and which is not appear is called as a recessive. I think अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? The character which is appear in F1 is called as a dominant and the character which is not appear in F1 is called as a recessive. So इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ क्या दिया है उसने? डोमिनेंस का एंड रिसेसिव का. तो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. When a cross between 2 pure parents, क्या कहा है? 2 pure parents. तो कौन से भी प्योर पेरेंट लेंगे? सपोज येलो है, ये प्योर पेरेंट हो गया, एक ही कैरेक्टर लेके. अगर मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया येलो टॉल, तो 2 क्रॉस लिए, मतलब 2 कैरेक्टर को कंसिडर किया. येलो को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? क्या बताओ? ग्रीन, स्मॉल y. टॉल को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? ड्वार्फ. अब ये क्या हुए? पेरेंट्स. बाय कंसिडरिंग, कौन सा लिया है बताओ? बाय कंसिडरिंग व्हाट? When a cross between 2 pure parents, क्या कहा है? 2 pure parent. By considering 1 or more pair. पहले मैंने 1 ही लिया था, येलो एंड ग्रीन. अब दूसरा भी 1 और मोर कहा है ना? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट अपीयर इन F1 जनरेशन. अब हमें F1 जनरेशन में लेके आना है, तो इसका गैमेट क्या आएगा? कैपिटल Y कैपिटल T. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका गैमेट्स क्या आएगा? स्मॉल y स्मॉल t. ओके हेलो मैम. यस, लास्ट 10 minutes. ओके.
Now fusion of this produces what? Just give me the answer. Fusion of these two produces what progeny? Genotypic progeny. I want genotype. Please, all of you, give me the genotype for this, for F1 generation. What will be the genotype for this? Capital Y and small y. Can you get my question? This is called as a genotype. Yes, Gayatri. And capital T and small t. This is called as a genotype. Now, what is the phenotype for this? इसका phenotype क्या आएगा? Yes. इसका phenotype क्या आएगा? Yellow species and yellow and क्या आएगा बोलो? Yes, I want answer. शांभव, yellow and tall दोनों भी आएंगे. Yellow and क्या आएगा? Tall. So now yellow and tall, that character is appear in. ये character किस में appear हुआ? In F1 generation. But कौन सा character appear नहीं हुआ बताओ मुझे? Which character is not appear now? Give me the answer. Which character is not appear in this plant? In this progeny, which character is not seen? Dwarf, both, two. One is green, another one is the dwarf. So the character which is not seen, very good. White नहीं, white हमने लिया ही नहीं, थोड़ा confusion हो गया. Yellow और क्या लिया है देखो, yellow को क्रॉस करके हमने क्या लिया था? ग्रीन. बराबर है. तो येलो क्रॉस विथ किसके साथ लिया है? ग्रीन. और टॉल किसके साथ लिया है? ड्वार्फ के साथ. तो थोड़ा सा व्हाइट मत मतलब ले लो, थोड़ा सा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपका. तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डिसअपियर हुआ है? ग्रीन एंड ड्वार्फ कैरेक्टर डिसअपियर हुआ है. तो कैरेक्टर विच इज डिसअपियर इज कॉल्ड एज ए रिसेसिव. उसे क्या नाम डेफिनेशन देंगे? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज ए रिसेसिव. एंड कैरेक्टर विच इज अपियर, विच कैरेक्टर इज अपियर नाउ हियर? कौन सा कैरेक्टर अपियर हुआ है? देख ही रहा है हमको. विच कैरेक्टर इज अपियर? येलो, that is dominant. Very good. The character which is appear is called as a, देखो अभी, the character that appear in F1 generation is called as, shabash, is called as a dominant, and the character which is not appear is called as a recessive. तो please फिर से एक बार definition आप सबको आंसर करना है. When a cross between two pure parent, two pure parent, दो pure parent में हमने cross किया by considering what? One और two pair of contrasting character. वन लिए या तो टू लिए. द कैरेक्टर विच इज अपियर इन, कैरेक्टर कहाँ पे अपियर हुआ? F1 जनरेशन. जो अपियर हुआ दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज, व्हाट इट इज कॉल्ड? एज ए डोमिनेंट. उस कैरेक्टर को क्या नाम दिया? शाबाश, डोमिनेंट. एंड द कैरेक्टर विच इज नॉट अपियर इज कॉल्ड एज ए, द कैरेक्टर विच इज नॉट अपियर इज कॉल्ड एज ए रिसेसिव. एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ दिस लॉ को हमने क्या नाम दिया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको थोड़ा ध्यान देना है. फिर उसके बाद थर्ड लॉ विच इज प्रपोज्ड बाय मेंडल, दैट थर्ड सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. And third law, law of independent assortment. तो 3 laws are proposed by Mendel. Mendel ने कितने laws propose किए हैं? 3 law. उसके साथ उसके बाद आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है. बैक क्रॉस मीन्स व्हाट? F1 dominant variety is cross with which parent? Recessive parent. That back cross is called as a test cross. So now back cross means F1 क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट भी होगा, F1 क्रॉस विद किसके साथ होगा? रिसेसिव पेरेंट के साथ. लेकिन अगर F1 वैरायटी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होगी तो उस क्रॉस को हम क्या देंगे? टेस्ट क्रॉस नाम. तो अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, ऐसे समझते हैं. अब आप मुझे बताओ, हाँ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं क्या कहूँ? व्हाट दिस इज कॉल्ड एज ए, which terminology I have to use here? आपको धीरे धीरे आना चाहिए. Internal constitution of organism is called as, इसे क्या लिखना चाहिए? What I have to write? This is called as, now all of you getting point, genotype. Now what I have to write here? शाबाश. यहाँ पे ये क्या लिखना चाहिए? Capital T small t means what? What these are called as a? हाँ शाबाश. These are called as a gametes. Now that gametes, इस बोर्ड को मैं क्या कहूँ? What this is called as a?
Yes, what this board is known as? शाबाश तनिष्क, दिस बोर्ड इज कॉल्ड एज ए चेकर बोर्ड। तो देखो अभी ये वैरायटी हमने कौन सी ली है, टॉल, ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है, क्लियर हो रहा है। नाउ F1 हाइब्रिड वैरायटी क्रॉस विथ किससे साथ किया है, क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट। कौन से पेरेंट से किया है, रिसेसिव, जिसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इनके क्या प्रोड्यूस किए, गैमेट्स। सो सी बेनिफिट क्या हो रहा है इसका, जो ये प्लांट है इसके गैमेट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो प्लांट है दैट इज रिसेसिव फीमेल पेरेंट, उसके गैमेट्स क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ अब मुझे फिनोटाइप बताओ, व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, शांभवी, व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटाइप क्या आएगा। हाँ यस सफा, टॉल, तनश्री, गुड, सिद्धि, हाँ दीक्षा, शाबाश, इसका फिनोटाइप क्या आएगा, टॉल, शाबाश। व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी क्या आएगा बताओ, टॉल, यस। इसका फिनोटाइप क्या आएगा, व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, हाँ वेरी गुड, नाउ नाउ ऑल ऑफ यू गेटिंग पॉइंट, हर एक को आना चाहिए। व्हाट इज द फिनोटाइप फॉर दिस, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, शाबाश। स्मॉल टी के लिए क्या आया, ड्वार्फ, और यहाँ पे भी स्मॉल टी के लिए क्या आया, ड्वार्फ, वेरी गुड, हाँ ऑल ऑफ यू गेटिंग। तो टॉल इज टू ड्वार्फ, तो रेशियो किसका आ रहा है बताओ, टॉल इज टू ड्वार्फ इज व्हाट रेशियो, 2:2, रेशियो क्या आ रहा है बताओ, 2:2, क्लियर हो रहा है आपको, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ यस 2:2, दैट मीन्स व्हाट, इनडायरेक्टली 1:1 रेशियो, समझ में आ रहा है, 1:1 रेशियो आ रहा है, शाबाश। तो 1:1 रेशियो इज यूज्ड टू क्रॉस व्हाट, क्रॉस टेस्ट क्रॉस, समझ में आया आपको। तो आपको ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस थोड़ा पढ़ना है। और कल मेंडल किस जगह पे गलत हुआ, मतलब वो उसका क्रॉस हर बार सेम नहीं आया। सो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स। तो जो मेंडल को जो मिला था उससे कुछ अलग साइंटिस्ट ने ढूंढा। उसके पहले मुझे 2 लॉज और पढ़ाने हैं, हाँ यस शाबाश, कौन से 2 लॉज पढ़ाने हैं बताओ, फर्स्ट लॉ इज ओवर, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट लॉ, law of, just give me the answer, law of, what is the name of first law, law of dominance, very good. And second law is law of segregation, shabash, second law is called as a law of segregation. segregation meaning क्या होता है, separate होना। तो separate होना मतलब क्या, थोड़ा कोशिश करती हूँ अगर टाइम है तो, when a F1 generation form gametes the alleles segregate from each other। देखो अब यहाँ पे F1 जनरेशन है ना, ये तो पेरेंट हो गए, ये भी पेरेंट हो गया, इनके ये गैमेट्स आए, ये गैमेट्स आए, दैट गैमेट्स फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म व्हाट जनरेशन, F1 जनरेशन। नाउ इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन F1 जनरेशन फॉर्म अ गैमेट्स, अब ये गैमेट बनाएगी, व्हाट आर द गैमेट्स, ये इसके गैमेट्स कितने टाइप्स के होंगे, अनस आई वांट आंसर, इज अनस इज देयर, what are the gametes for this plant, capital Y small y capital T small t, I want gamete from all of you, what are the gametes for this, हाँ yes, capital Y capital T, 4 gametes, 4